अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। केसीआर की तेज तरीन इंतखाबी जलसे जारी, कांग्रेस को फिर बनाया तनकीद का निशाना, किसान मुखालिफ होने का कांग्रेस पर लगाया इल्जाम। हरीश राव ने आइंदा इलेक्शन में सियासी पार्टियों का क्रिकेट से किया मवाजना, कहा बीजेपी डकआउट, कांग्रेस होगी रनआउट, जबकि केसीआर लगाएंगे सेंचुरी। केटीआर ने बीआरएस स्टूडेंट्स विंग की मीटिंग में की शिरकत, कहा कांग्रेस का मतलब मुश्किलात, आंसू और खून बहाना है। तेलंगाना में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंतखाबी जलसे में की शिरकत, कहा बीजेपी या बीआरएस ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान को आजादी कांग्रेस ने दिलाई। शहर हैदराबाद में गैर कानूनी रकम की मुंतकली के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी, पुराने शहर हैदराबाद में गाड़ियों की चेकिंग, एमएलसी रियाजुल हसन अफंदी की गाड़ी की भी ली गई तलाशी। और तेलंगाना कांग्रेस में फूट के आसार, टिकट न मिलने से नाराज लीडरों का बढ़ता जा रहा है गुस्सा। जुबली हिल्स से विष्णुवर्धन रेड्डी को टिकट न मिलने पर माइनॉरिटी लीडरों ने भी जाहिर की नाराजगी। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने हल्का असम्बली टंगातुर्ती में इंतखाबी जलसे-आम से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। सीएम केसीआर ने कहा कि 2014 से पहले जब भी वो यहाँ का दौरा करते थे तो किसी तालाब में पानी नजर नहीं आता था, लेकिन अब एक बार भी बारिश हो जाए तो तालाब भर जाते हैं। अपने खिताब के दौरान सीएम केसीआर ने ये कहते हुए कांग्रेस कायदीन पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस लीडरों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम की जीत तभी होगी जब ये समझदारी से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। మాట్లాడేటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులతో కాదు, ఖచ్చితంగా బీఆర్ వస్తేనే కావాలి. కర్నూలుకి ఎట్లయితే కవచ కుండలాలు ఉండేనో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి బీఆర్ఎస్ఏ శ్రీరామ రక్ష. తెలంగాణ బీఆర్ఎస్ పుట్టిందే తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు అడుగు అడుగునా కాపలాగా ఉండి వాళ్ళ హక్కులు కాపాడడానికి పుట్టింది అని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి ఒక పెద్ద లీడర్ వచ్చింది. ఆ రాష్ట్రానికి ఆయన ఉప ముఖ్యమంత్రి. ఆయన వచ్చి మన పరిగి పోయినాడు, అక్కడ ఉపన్యాసం మాట్లాడుతాడు. ఏమని మాట్లాడతాడు? But still we are giving 5 hour power to the every farmer. 5 hour power to the every farmer. మా కర్ణాటక రాష్ట్రంలో చాలా బ్రహ్మాండంగా రైతులకు మేము 5 గంటల కరెంట్ ఇస్తామని చెప్తున్నాడు. చెప్పడానికి కూడా ఏమైనా ఇజ్జత్ ఉండన్నా, సిగ్గుండన్నా? ఎక్కడనైతే 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చే రాష్ట్రంలో వచ్చి మా రాష్ట్రంలో 5 గంటలతో కరెంట్ ఇస్తున్నామని చెప్తే అంతకన్నా దిగజారుడు ఇంకేమైనా ఉంటుందా? అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నామో ఒళ్ళు తెలిసే మాట్లాడుతుండా అంటే ఏమవుతుంది? మొన్న కర్ణాటకలో ప్రజలు నమ్మి ఓటేస్తే వాళ్ళకి 5 గంటల కరెంటు దిక్కు చేసినారు. వాళ్ళందరూ ధర్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇలా అంటే తెలంగాణలో కూడా నమ్మి ఓటేస్తే గ్యారంటీ కాంగ్రెస్ కరెంట్ కాట కలుపుతుంది, తీసుకుపోయి దానికి మొత్తం ఏం లేకుండా వేస్తే మళ్ళీ మొదటికే వస్తుందని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను। रियासती वजीर हरीश राव ने इंतखाबी जलसे के दौरान पेश कयासी की कि आने वाले असम्बली इलेक्शन में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में क्रिकेट की मिसाल देते हुए कहा कि बीजेपी 0 पर या डक आउट हो जाएगी, कांग्रेस रन आउट हो जाएगी, जबकि केसीआर सेंचुरी लगाएंगे। మొత్తం తెలంగాణలో బీజేపీ ఒకటే గెలిచింది, ఈసారి అయితే డక్అవుట్ అవుతుంది గ్యారంటీగా, డక్అవుట్। ఇప్పుడు క్రికెట్ నడుస్తుందా? వరల్డ్ కప్ రోజు చూస్తారా టీవీ? క్రికెట్లో చెప్పాలంటే బీజేపీ వాడు డక్అవుట్, కాంగ్రెస్ వాడు రన్అవుట్, కేసీఆర్ సెంచరీ, పక్కా సెంచరీ కొట్టాం। పోయినసారి 88 వచ్చినాయి, ఈసారి 100 కొట్టుడే, మనం 100 కొట్టుడే। రన్అవుట్ అంటే ఏంది? ఇప్పుడు బాల్ గాందాకపోతే ఉరికితే రన్ వస్తుంది, బాల్ గీన్నే ఉంది ఉరికినాం అనుకో రన్అవుట్ అవుతావు। కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వాళ్ళకి టికెట్లు ఇవ్వడానికే మనుషులు లేరు, టికెట్లు అమ్ముకున్నారు। ఇవాళ ఆదిలాబాద్ టికెట్ అమ్ముకున్నారా లేదా? ఎవరు అడిగినా చెప్తారు, ఎంత అమ్ముకున్నారో కూడా చెప్తారు। నేను చెప్పేందుకు ఆదిలాబాద్ కాంగ్రెస్ నాయకులే చెప్తున్నారు, టికెట్ ఎంత అమ్ముకున్నారో లెక్కతో సహా చెప్తున్నారు, ఆధారాలు చెప్తున్నారు। ఎంత 10 కరోడా
10 కోట్లు. సరే మనం ఎందుకు కాంగ్రెస్ వాడు చెప్తుండే ఎంత కమ్ముకున్నాడు. మనుషులు లేరు, టికెట్లు అమ్ముకుంటున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వస్తుందా? ఇలా వాళ్ళ దగ్గర పోటీ చేయడానికి సత్తా కలిగిన నాయకులు లేక పక్క పార్టీల నుంచి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులను తెచ్చుకొని పైసలకు టికెట్లు అమ్ముకుంటున్నారు. ఇవాళ వాళ్ళు ఇవాళ టికెట్లు అమ్ముకున్నారు, రేపు తెలంగాణను అమ్ముకుంటారు. గాల చేతుల తెలంగాణ ఉంటే బాగుపడుతుందా? ఈ టికెట్లు అమ్ముకుంటే వాళ్ళు రేపు తెలంగాణను అమ్ముకోరా? ఉంచుతారా వీళ్ళు తెలంగాణను? ఇవాళ చావు నోట్లో పెట్టి తలబెట్టి తెలంగాణ తెచ్చిన కేసీఆర్ దిక్కుంటే లాభం పడుతుందా? ఈ టికెట్లు అమ్ముకునే వాళ్ళ చేతిలో తెలంగాణ ఉంటే బాగుంటుందా? దయచేసి ఇవాళ తెలంగాణ సమాజం ఆలోచించాలి. తెలంగాణ సమాజం ఆలోచించాలి. ఇవాళ ఓటుకు నోటు దొంగల చేతుల్లో కాదు తెలంగాణ ఉండాల్సింది. కేసీఆర్ లాంటి త్యాగ ధనుడి చేతిలో ఈ తెలంగాణ ఉండాలి. కేసీఆర్ చేతిలో ఉంటే ఈ తెలంగాణ పదిలంగా ఉంటది, ఇంకా అభివృద్ధిలో ముందుకు పోతుంది. उधर रियासती वजीर और बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के तारक रामाराव ने बीआरएस स्टूडेंट्स विंग की मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब मुश्किलात, आंसू और खून बहाना है। 1956లో తెలంగాణకు ఆంధ్రకు ఇష్టం లేని బలవంతపు పెళ్లి చేసింది ఇదే దిక్కుమాలిన కాంగ్రెస్ పార్టీ. 1968లో 370 మంది తెలంగాణ యువకులను, తెలంగాణ విద్యార్థులను పోలీస్ కాల్పుల్లో కాల్చి చంపింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. మళ్ళీ 1971లో 11 మంది పార్లమెంట్ సభ్యులను తెలంగాణ ప్రజలు గెలిపిస్తే వాళ్ళందరినీ ప్రజాభిష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఆనాడు తెలంగాణ ఆకాంక్షను తుంగలో దొక్కి ఆ 11 మందిని గొర్రెల్లాగా తీసుకొని పోయి మరి వాళ్ళ పార్టీలో కలుపుకొని తెలంగాణ ప్రజాభిప్రాయాన్ని తుంగలో తొక్కింది కాంగ్రెస్. 2004 నుంచి 14 దాకా, 2004లో మాటిచ్చి 14 దాకా చావగొట్టి శ్రీకాంతచారి, యాదయ్య, యాదిరెడ్డి లాంటి, ఇషాన్ రెడ్డి లాంటి వందల మంది పిల్లల చావులకు, విద్యార్థుల చావులకు, బలిదానాలకు కారణం బలిదేవత సోనియా గాంధీ కాదా? ఒకసారి ఆలోచించమని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇలా అదే కాంగ్రెస్ వచ్చి హంతకుడే సంతాపం చెప్పినట్టు, చంపినోడే సంతాపం చెప్పినట్టు ఇలా వాళ్ళే వచ్చి మాకు ఓటేయండి, తెలంగాణను అద్భుతం చేస్తామని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. దయచేసి మనందరం కూడా చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది. మనందరం కూడా ప్రతి ఒక్కలను జాగరూకులను చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే మొదటి నుంచి విద్యార్థుల ఆధ్వర్యంలో నడిచే ఉద్యమాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసిందో, ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే విద్యార్థుల మీద ఘాతకాలు చేసిందో, ఇవాళ ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీని పొరపాటున కూడా ఏ విద్యార్థి అయినా నమ్మవచ్చునా ఆలోచించమని అడగాలి. ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చిన మీ అందరినీ నేను ఆలోచించమని కోరేది ఒకటే. तेलंगाना दौरे पर मौजूद कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को आज़ादी बीजेपी या बीआरएस ने नहीं, बल्कि देश को आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई है। ये यूपीए गवर्नमेंट में नए योजनाएं लाए, मनरेगा लाए, कंपलसरी एजुकेशन लाए, फूड सिक्योरिटी लाए, हेल्थ मिशन लाए, ये सब काम हमने किया। और ये लोग हमारे खिलाफ क्या बोल सकते हैं? सिर्फ यही बोल सकते हैं कांग्रेस ने सत्ता। अरे तुम्हारी गवर्नमेंट ही नहीं थी, 70 साल में क्या किया बोल के कौन बोल रहा है? 60 साल वाला बोल रहा है। हाँ, तुम्हारी पैदा भी नहीं हुए थे आजादी के पहले। क्या आजादी तुम लोग लाए? क्या तुम्हारे रिश्तेदार लाए? क्या बीजेपी लाई? क्या आपकी बीआरएस लाई? तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी के ऑफिशियल स्पोक पर्सन मोहम्मद सलीम जावेद ने हमारे नुमाइंदे सैयद जमील अहमद से बात करते हुए साबिक रुकन असेंबली विष्णुवर्धन रेड्डी को हल्के जुबली हिल्स से पार्टी टिकट न मिलने पर नाराजगी जाहिर की और अपने ख्यालात का इजहार किया। आदाब नाजरीन, BBN न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद जमील अहमद। आज मैं आया हूं आपको एक ऐसी शख्सियत से तारुफ़ कराने के लिए जो TPCC के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं मोहम्मद सलीम जावेद साहब, जो कि कल गांधी भवन में यहाँ के जुबली हिल्स के फार्मर MLA विष्णुवर्धन रेड्डी को टिकट नहीं मिलने पर आप वहाँ पर नाराज़गी जता रहे थे। तो आज आपके सामने सलीम जावेद साहब है, आइए मैं जानने की कोशिश करूँगा उन्हीं के ज़बानी।
सलीम साहब, जानना यह है, जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी से विष्णुवर्धन रेड्डी साहब 2 बार यहाँ से कॉन्टेस्ट करे और 2 बार यहाँ से जीते और पिछली 2 मरतबा वो हारे। तो जानना यह है, विष्णुवर्धन रेड्डी साहब को और पी जनार्दन रेड्डी साहब के फर्जन है उन्होंने, तो इनको इतने हार्ड वर्कर होने के बावजूद, मतलब इतना पार्टी के लिए कुर्बानी देने के बावजूद आज उनको टिकट नहीं मिली, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? पीजीआर के सुपुत्र होने के नाते पीजीआर के सर्विसेज पूरे खैरताबाद हल्के में जो 5 हल्के बने हैं अभी बाइफिकेशन के बाद में, उसके बाद जुबली हिल्स के इलेक्शन में भी विष्णु को टिकट दिया गया, विष्णु जीते और वहाँ से फिर 2 बार इलेक्शन हुआ। तेलंगाना सेंटिमेंट में पूरी कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ, उसमें हारे। फिर उसके बाद में जो प्रोमिसेस वगैरह किए गए थे रूलिंग पार्टी की वजह से, उसके बाद भी जो है सो उनको हार का सामना करना पड़ा। और जब एमआईएम कैंडिडेट नहीं था इससे पहले, बाद में एमआईएम कैंडिडेट आने की वजह से भी हारना पड़ा, वो एक रीज़न है। खैर ये सब चीज़ें अलग है। अब टिकट नहीं मिलने की वजह एक ही है, कांग्रेस पार्टी में हैदराबाद में सिर्फ पीजीआर की फैमिली कांग्रेस पार्टी में बची हुई है। जो पुराने लीडरान थे, किसी का इंतकाल हो गया या कोई लोग पार्टी बदल लिए हैं, लेकिन पीजीआर की फैमिली और उनके फर्जंद विष्णुवर्धन रेड्डी साहब उनके वालिद के क़ुरबानियों को देखते हुए, उनके वालिद के खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए पार्टी के साथ में मेरे वालिद जो सेक्रीफाइस करे, इसलिए मैं मेरे वालिद के नक्शे कदम पे पार्टी को देखूंगा, मेरे फ़ायदे के लिए नहीं, मैं पार्टी के लिए और मेरी आवाम के लिए, जो आवाम मेरे पे इत्मीनान और भरोसा करे, मैं उनके साथ रहूँगा। बल्कि कांग्रेस पार्टी का दामन पकड़ के अब तक लेके चले हैं हम लोगों को सबको। उसी तरीके से जुबली हिल्स में गली गली में, बस्ती बस्ती में, कॉलोनी कॉलोनी में, हर जगह पर डोर टू डोर उन्होंने हर जगह पर सबसे मुलाकात करते हुए, कैडर को बिल्डअप करते हुए, कैडर का कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हुए यहाँ तक लेके आने के बाद में अब जो ये 2 साल में जो पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी आए हैं, और इन्हों कैसा आए ये पूरी आवाम को मालूम, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है ये कौन सी पार्टी से आए और कैसा आए। सो है जब इन्हों को जैसा आए वैसा कमाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा एक चीज़ देखें, अगर हैदराबाद सिकंदराबाद पार्लियामेंट्री हलकों में कोई कांग्रेस पार्टी की सीट अगर जीतने की है, वो एक है जुबली हिल्स। सबसे पहले रिजल्ट जुबली हिल्स का आएगा और वो सीट कांग्रेस की सीट रहेगी। तो ये अगर विष्णु को टिकट दे दिए, विष्णु वहाँ से जीत गया, फिर से हैदराबाद में एक स्ट्रॉन्ग लीडर की शक्ल में इन्हों उभर के आता। इसलिए हैदराबाद में, ग्रेटर हैदराबाद में हमारी नहीं चलती, इसलिए विष्णुवर्धन रेड्डी को टिकट दिए रोकते हुए इनको और आगे नहीं जाना बोल के ये बदमाशी करके टिकट रोका गया है। उधर जुबली हिल्स हल्का असम्बली एरागड्डा डिवीज़न के सुल्तान नगर जुनूबी शंकरलाल नगर में 150 नौजवानों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम का इफ्तिताह बीआरएस एमएलए उम्मीदवार मंगटी गोपीनाथ ने केक काट कर किया। इस मौके पर एरागड्डा डिवीज़न सदर संजीवा, जनरल सेक्रेटरी शरीफ कुरैशी व दीगर मौजूद थे। पार्टी जिला दफ्तर में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आदिलाबाद एमएलए जोगू रमना ने रियासती वज़ीर ख़जाना व सेहत हरीश राव के प्रजा आशीर्वाद महासभा और बाइक रैली को कामयाब बनाने पर बीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनान से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि हरीश राव के इजलास से एक बात साफ ज़ाहिर हो गई कि हल्क़े आदिलाबाद से इंतखाबात में उनका कोई मुखालिफ नहीं है। अपोजिशन जमातों के लिए ज़मानत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा तो हमको लग रहा है, कोई भी लीडर कार्यकर्ता से ऐसा मोहब्बत से प्यार से अगर रहता, कार्यकर्ता भी वैसा रिस्पॉन्स, मैं समझ गया, मैं जितना फ्री एंड फ्रैंकली कार्यकर्ता से मिल रहा हूँ, हमारा लीडर भी मिल रहे, हमारा लीडर भी काम कर रहे, उस वास्ते उतना कार्यकर्ता जोश पाया। और इससे पहले थोड़े दिन पहले बीजेपी का अमित शाह साहब आया था, वो देश का होम मिनिस्टर साहब का मीटिंग कैसा था, क्या था, और वो इधर से आए, महाराष्ट्र से भी आए, आदिलाबाद उमर जिला में चेन्नूर का मंचरल किधर, वहाँ के लोग भी
बालकोंडा निजामाबाद में तो बालकोंडा से भी आए, सबसे आए। इस वास्ते वो लोग उतना अलग अलग एरिया से आने के बाद भी हमारा मीटिंग का तो काबिल उनका नहीं था। खुद कार्यकर्ता बोल रहे, लोगों बोल रहे, बिजनेसमैन बोल रहे, अरे अरे ये क्या मीटिंग है हमारा कार्यकर्ता का बोल के हम पूरा रोडों पे देखे तो पूरा गुलाबी गुलाबी दिख रहे, उनके लोग परेशान हो गए। अप्रिशिएट भी करें इस वास्ते कार्यकर्ता को फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया कहते हुए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। वक्फ ज़मीन पर कब्जे का एक और मामला सामने आया है। वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर मोहम्मद हकीम ने मीडिया से बात करते हुए वक्फ इमलाक पर नाजायज़ कब्जे की शिकायत मिलने और इस जानिब वक्फ बोर्ड की जानिब से की जा रही कार्रवाई के बारे में तफसील बताई। सादुल्लाह हुसैनी ग्रेवयार्ड के तहत वक्फ लैंड है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो काम रुकाने के लिए है। कहाँ पर है साहब? ये दारुसलाम धोबन की मस्जिद के सामने, जिसमें सदर चेयरमैन साहब और सीओ साहब के इंस्ट्रक्शंस पे आए हुए हैं। इंशाल्लाह आगे की कार्रवाई की जाएगी। कम से कम 250 गज है, अप्रॉक्सीमेटली 250 गज ज़मीन है, जिस पे फर्स्ट स्लैब डाल दिया गया विदाउट परमिशन फ्रॉम वक्फ बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद अब्बासुल्लाह हुसैनी तकिए सादुल्लाह हुसैनी का पड़पोतरा हूँ और सैयद सादुल्लाह हुसैनी की जो प्रॉपर्टी कब्रस्तान ग्रेवयार्ड है इसको नीलाम किया जा रहा है और यहाँ पे मकानात तामीर कर रहे हैं और मैं इसका केस लड़ रहा हूँ। इसका सर्वे नंबर ये है 602, इस सर्वे नंबर है रज़ाकपुरा, अपोजिट मस्जिद धोबन और मस्जिद धोबन है और इसका असल नाम मस्जिद गाजर है। गाजर के बाद मस्जिद धोबन रखा गया इसका। और दूसरी ये है कि रज़ाकपुरे में जो है ग्रेवयार्ड में है ये तकिए सादुल्लाह हुसैनी का ग्रेवयार्ड है, ये बहार अली शाबी इन्हीं के हाथे में है और कट्टल मंडी भी इन्हीं के हाथे में है और केडिया भवन इन्हीं के हाथे में है, दाल मंडी है इन्हीं के हाथे में है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है और इसको 2260 गज जमीन बताया जा रहा है। इसको ये पूरा निकाल के करके इसको कौन परमिशन दिए, इनको मकान तामीर हो रहा है। ऑलरेडी ये केस चल रहा है 788 33 OS 10, ये 3 केस हैं उसके ऊपर चल रहे हैं ऑलरेडी। तेलंगाना में इंतखाबात के पेश नज़र अमन व अमान की बरकरारी के लिए मोमिनपेट में आज जिला विकाराबाद के एसपी कोठी रेड्डी और डीएसपी नारायणा की हिदायत पर मोमिनपेट मुस्तकिर में रैपिड एक्शन फोर्स ने मकामी पुलिस दस्तों के साथ फ्लैग मार्च किया। सर्कल अंजनियालो के अलावा दिगर पुलिस अमले ने इस फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। मोमिनपेट एसआई विठल रेड्डी ने इस मार्च की क़यादत की। विठल रेड्डी ने बातज़ा मीडिया से बात करते हुए कहा कि अनकरीब मुनक़्क़द होने वाले इंतखाबात के अलावा अमन व सलामती को यकीनी बनाना, लोगों की जान व माल की हिफाजत करना, आईन हिंद की हिफाजत को आम करना और आवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना इस फ्लैग मार्च का मकसद है। साथ ही आवाम को ये बताना भी है कि पुलिस हमेशा उनके साथ है। 2023 ఎలక్షన్లను దృష్టిలో పెట్టుకొని మోమిన్పేట్ మండలంలో పోలీస్ కవాతు నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కవాతు ఎందుకు నిర్వహిస్తున్నామంటే ఈ ఏరియా మీద ఎలాంటి అవాంఛిత సంఘటనలు జరగకుండా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఎలక్షన్లు పూర్తయ్యే విధంగా ఎలాంటి చెడు సంఘటనలు జరగకుండా ఈ యొక్క ఏరియా డామినేషన్ కోసం ఈ కవాతు నిర్వహించడం జరిగింది. మోమిన్పేట్ మండలంలో మోమిన్పేట్, వరంగపల్లి, వెంకతల,
చీమల్దరి గ్రామాలలో ఈ పోలీస్ కవాతు నిర్వహించడం జరిగింది. ఏదైతే ఎక్కడైతే గొడవలు జరుగుతాయనేటటువంటి ఒక అపోహ ఉంటుందో అక్కడ పోలీస్ వాళ్ళు ఎంత ఉన్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళ లోపల నమ్మకం కలిగించడం కోసం ఈ కవాతు నిర్వహించడం జరిగింది. तेलंगाना में इंतखाबात के पेश नज़र रियासत भर में गैर कानूनी रकम की मुंतकली के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी है। इसी के तहत हैदराबाद के इलाके मुगलपुरा वॉल्टा होटल के करीब भवानी नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में इंस्पेक्टर एम रविंदर, सब इंस्पेक्टर एंड टीम की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस टीम ने MLC रियाजुल हसन आफंदी की गाड़ी की भी तलाशी ली। इसी तरह इलेक्शन कमीशन की जानिब से याकूतपुरा 1C इंचार्ज सैयद शुजात अली इंस्पेक्टर ने आज सुबह CISF के जवानों के हमरा हरीबावली रोड पर व्हीकल चेकिंग अंजाम दी। पुराने शहर में मजमूई तौर पर 3 इंस्पेक्टर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन की बिदरामद पर उनके लिए तहनीती तकरीब मुनक्कद की गई। इस मौके पर किए गए अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मैं हर वक्त अपनी कौम के लिए नुमाइंदगी करता रहूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी आइन पर यकीन रखते हुए मुख्तलिफ रियासतों में अपनी हुकूमतें चला रही हैं। वह हर मजहब के अवाम को बराबर साथ रख कर हुकूमत चला रही है, जबकि बीजेपी मज़ाहिब में दरार डालकर हुकूमत करने पर यकीन रखती है। के शिव कुमार और कईयों लोग हैं, सभी लोग मिलके जो हमने यहाँ पर जो काम शुरू किया 1-2 साल पहले ही, जो कोरोना के समय पे संघर्ष यहाँ पर प्रारंभ हुआ और वो संघर्ष अंत तक चला और हम लोग कामयाब हो गए। कर्नाटक की जनता हमारे ऊपर आशीर्वाद किया, आशीर्वाद करके एक भ्रष्ट जातिवादी भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंक के 136 MLA को उन्होंने हमको जिता के दिए। रूल के तहत अगर वो इस देश को चलाइए या अलग अलग स्टेट को चलाइए तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाइए। आज हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ईश्वर खंडे साहब ने, राजशेखर पाटिल साहब ने बहुत सारी बात उसमें रखी। मैं हिजाब के, हलाल के, अजान के बारे में बात करना नहीं चाहूंगा। मैं हमारे 5 गारंटीज के बारे में बात करना नहीं चाहूंगा। मैं सच्चर कमेटी के बारे में मैं बात करना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये सारी बात हो चुकी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, हमारे सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस इसलिए हैं क्योंकि हमारे 50 पहले आजादी के बाद हमारे 50-60 साल में हमारे को कोई चैलेंज नहीं था। आज हमारे खिलाफ यानी कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और देश के खिलाफ एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज हमारे पास है, एक सोच का चैलेंज है। एक ऐसी ताकत उभर के आई है जो ताकत इस देश को बांटना चाहती है। इस देश का जो डाइवर्सिटी है उसको खत्म करना चाहती है। इस देश में हम लोग और वो लोग करके वो करना चाहती है। इस देश में अमीर लोग और गरीब लोग में बांटना चाहती है। इस देश को जात में बांटना चाहती है। इस देश को भाषा के बिना पे बांटना चाहती है। तो उस ताकत के खिलाफ हमारे को अगर खड़े होना चाहिए तो हम लोग को एकजुट होना चाहिए। कौन लोग एकजुट होना चाहिए? हम लोग इस देश के हर वो नागरिक जो हमारे संविधान में यकीन रखता है, इस देश की एकता और अखंडता में जो यकीन रखता है, इस देश में बराबरी सबको बराबरी का हक दिलाने में यकीन रखता है, वो हर एक शख्स को हम लोग को खड़े होना पड़ेगा। आज इतवार की सुबह 10 बजे दिन जमीयत उलमा सदाशिवपेट की जानिब से एक अज़ीमुश्शान जलसे आम सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तक़सीम इनामात मुनक़्क़द किया गया, जिसकी सदारत मौलाना काजी अब्दुल रहमान ने की। मौलाना मूसा खान और मौलाना मुफ्ती असलम सुल्तान साहब कासमी ने मेहमानान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की और बसीरत अफरोज़ खिताब किया। जलसे में मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज जमीयत उलमा शाख सदाशिवपेट की जानिब से एक सीरत क्विज़ के मुकाबले का इम्तिहान ये इनामात का जलसा मुनाक़िद किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह शहर के और बैरून शहर के तलबा और तालिबात में हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इनामात के साथ उनको नवाजा गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जमीयत के सबसे पहले कारकर्दगी है। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम हमेशा हर साल इसके तरीके से मनाया जाएगा। आप सबसे गुजारिश की जाती है कि इसमें शिरकत फरमाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की हिफाजत करने और उसको आम करने की हर चंद कोशिश करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से कुछ दिन पहले सीरत क्विज़ का मुकाबला रखा गया था, जिसके अंदर तलबा और तालिबात ने
बहुत कसीर तादाद के अंदर हिस्सा लिया और उसी के ज़िम्न के अंदर आज सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जलसा तक़सीम इनामात के नाम से जलसा रखा गया था, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। इस जलसे के अंदर और सीरत क्विज़ के मुकाबले के अंदर जितने अहबाब ने शहर सदाशिवपेट के अहबाब ने जिन अहबाब ने मदद और नुसरत की, हम जमीयतुल उलमा सदाशिवपेट तहे दिल से उनका शुक्रगुज़ार है। और इस जलसे के इनेकाद करने का मकसद ये है कि हमारे नस्लों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ज़िंदा हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ बताए हुए तर्ज़ ज़िंदगी पर हम अपनी ज़िंदगी गुजारने की तो कोशिश करें। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करेंगे तो उसके ज़रिए से हमारे दिलों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होगी। फिर जब मोहब्बत पैदा होगी तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने का हमारे अंदर शौक़ पैदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे इस अमल को कबूल फरमा कर हमारी ज़िंदगियों के अंदर और हमारी नस्लों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ ज़िंदगी को पैदा करने की हमें कोशिश फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महाराष्ट्र के शहर अकोला में फ़लस्तीनियों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरा जन सत्याग्रह की जानिब से मुनक़्क़द किया गया, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने हिस्सा लिया। यह मुजाहरा अकोला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर के रूबरू किया गया। मुजाहरे के दौरान जन सत्याग्रह एसोसिएशन के सदर आसिफ खान को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया, ताहम 2.5 घंटे बाद उनकी रिहाई अमल में आई। इससे कबल जन सत्याग्रह की जानिब से ज़िला कलेक्टर के ज़रिए वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम रवाना किया गया। के जो हालात है वो यकीनन सबके सामने जग जाहिर है, क्योंकि आज का इंसान जो है वो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर सर्च कर रहा है। फ़लस्तीन के सारे हालात उनके सामने खुल के आ रहे हैं। इसलिए आज जन सत्याग्रह संगठन की जानिब से एक धरना आंदोलन का इनेकाद किया गया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपनी शिरकत की है। इस आंदोलन के माध्यम से एक ही मांग थी, वो ये थी कि हमारी सरकार, भारत सरकार जो है वो इज्जत के साथ में इजराइल के राजदूत को उस वक्त तक के वापस करे जिस वक्त तक के ये जंग का माहौल जारी है। दूसरी ये चीज़ है कि आज अगर भारत इजराइल को आंख न दिखाता हो, इजराइल को ना दबाता हो, तो यकीनन कल इजराइल की इतनी ज़रूरत ज़रूर होगी कि वो भारत पर भी तीखी नज़रों से ज़रूर देखेगा। इसलिए हम ये देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के जो हालात है वहाँ पर हॉस्पिटलों पर भी हमला हो रहा है, बच्चों को भी शहीद किया जा रहा है, औरतों को भी बेवा किया जा रहा है, नौजवानों को मारा जा रहा है, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। ये जंग के रूल्स नहीं हैं, ये जंग के रूल्स के ख़िलाफ़ में है। फ़लस्तीन आज कई सालों से गुलामी की ज़िंदगी को जी रहा है और फ़लस्तीन अपनी आज़ादी के लिए इजराइल से लड़ रहा है। इसलिए उसके सपोर्ट में इंडिया भी है और आज का प्रोटेस्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन के सपोर्ट में था, मस्जिद अक्सा के सपोर्ट में था। यकीनन आपके ज़रिए से मैं एक आह्वान करूँगा कि आप एक मैसेज ज़रूर पहुँचाएँ कि फ़लस्तीन पर जो हमला किया जा रहा है, इजराइल जो हमला कर रहा है, वो इजरायली प्रोडक्ट का हम बायकाट करें। प्रोडक्ट क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, हम उसको गूगल पे सर्च करें। अगर हमको कोई इजरायली प्रोडक्ट दिख रहा है तो मैं अपनी ज़ात से उसको बायकाट करूं। यही फ़लस्तीन के ऊपर मदद होगी, यही इजराइल के ऊपर हमारा एक तीखा नज़रिया रहेगा। क्योंकि पिछले मुल्कों में जितने पिछले जो 17-18 दिन हुए हैं, इन 17-18 दिनों में कहीं लोगों ने इजरायली प्रोडक्ट का बायकाट किया तो इजराइल को 350 करोड़ का नुकसान हुआ। अगर आप भी इजरायली प्रोडक्ट का बायकाट करेंगे तो यकीनन इजरायली प्रोडक्ट जो है वो बिकेंगे नहीं और उस इजरायली प्रोडक्ट से आर्थिक व्यवस्था जो हो रही है उसके ज़रिए से फ़लस्तीन को मिटाने के लिए इजराइल बंदूकें, तोपे के, मिसाइलों की खरीदी नहीं करेगा, बल्कि वो कमज़ोर पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे मौदेबाना गुजारिश है कि इस इजरायली प्रोडक्ट का पूरी तरह से बायकाट करें। अल्लाह हाफिज़। निर्मल ज़िला मामडा SI राजू को ACB ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ACB ने इतवार के रोज़ मामडा SI राजू को मकामी पुलिस स्टेशन में 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इस सिलसिले में ACB के DSP रमना मूर्ति ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। వెల్కమ్ తిరుమల్ ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఫిర్యాదుదారులు అనంతపేట గ్రామము భార్య సర్పంచ్ వీళ్ళ తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు సతీష్ సురేష్ వీళ్ళిద్దరూ 24వ తారీఖు నాడు వాళ్ళ సొంత అదే ఊళ్ళో సూపర్ నరేష్ అనే అతని కిరాణా షాప్ దగ్గర ఆ కిరాణా షాప్ అతనితో గొడవ పడ్డారు. వీళ్ళు పడ్డందుకు
ఆ సూపర్ నరేష్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు ఇస్తే దాని మీద 25వ తారీఖు నాడు ఎఫ్ఐఆర్ అయిందండి. క్రైమ్ నెంబర్ 106/2023 అండర్ సెక్షన్ 341, 290, 323 ఐపీసీ ప్రకారం కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. అదే రోజు వాళ్ళిద్దరికి కూడా నేరస్తులు, ఆ కేసులో నేరస్తులు ఇద్దరికి కూడా ఎస్ఐ గారు వాళ్ళకి 41 సిఆర్పిసి నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది. సిఆర్పిసి నోటీసులు ఇచ్చాక కోర్టుకు పంపకుండా నోటీసులు ఇచ్చినామని చెప్పి 10,000 రూపాయలు లంచం డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. ఆయనకి ఇష్టం లేక వచ్చి మాకు కేసు ఇవ్వడం దరఖాస్తు ఇస్తే మేము ఈరోజు ఈ సల్కం తిరుమల గారు తన తమ్ముళ్ళ తరపున 10,000 రూపాయలు లంచం ఇస్తూ మన ఎస్ఐ గారు కే రాజు మామిడ ఎస్ఐ గారు రాజు గారికి ఈరోజు 10,000 రూపాయలు లంచం ఇస్తూ రెడ్ హ్యాండ్గా మాకు పట్టుబడ్డారు. స్టేషన్ బెయిల్ కోసమా సార్ ఇది? స్టేషన్ బెయిల్ ఇచ్చినందుకు. స్టేషన్ బెయిల్ చెప్పండి. అదే కోర్టుకు పంపించకుండా స్టేషన్ బెయిల్ ఇచ్చినందుకు 10,000 రూపాయలు లంచం అడిగారు. ఈరోజు లంచం తీసుకుంటూ రాజుగారు రెడ్ హ్యాండ్గా పట్టుబడ్డారు. आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। केसीआर के तेज तरीन इंतखाबी जलसे जारी, कांग्रेस को फिर बनाया तनकीद का निशाना, किसान मुखालिफ होने का कांग्रेस पर लगाया इल्जाम। हरीश राव ने आइंदा इलेक्शन में सियासी पार्टियों का क्रिकेट से किया मवाजना, कहा बीजेपी डकआउट, कांग्रेस होगी रनआउट, जबकि केसीआर लगाएंगे सेंचुरी। केटीआर ने बीआरएस स्टूडेंट्स विंग की मीटिंग में की शिरकत, कहा कांग्रेस का मतलब मुश्किलात, आंसू और खून बहाना है। तेलंगाना में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंतखाबी जलसे में की शिरकत, कहा बीजेपी या बीआरएस ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान को आजादी कांग्रेस ने दिलाई। शहर हैदराबाद में गैर कानूनी रकम की मुंतकली के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी, पुराने शहर हैदराबाद में गाड़ियों की चेकिंग, एमएलसी रियाजुल हसन अफंदी की गाड़ी की भी ली गई तलाशी। और तेलंगाना कांग्रेस में फूट के आसार, टिकट न मिलने से नाराज लीडरों का बढ़ता जा रहा है गुस्सा, जुबली हिल से विष्णुवर्धन रेड्डी को टिकट न मिलने पर माइनॉरिटी लीडरों ने भी जाहिर की नाराजगी। बीबीएन न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।